ضروری ہے کہ اپنے اپنے پوزیشن سنبھالیں اور 216 رنز بنانے کے لیے اب دیکھنا پڑے گا کہ السادات ٹوکر کی جانب سے اننگز کا آغاز کرنے کے لیے کون سے پلیئرز آتے ہیں. رائٹ ہینڈ بیٹسمین ابرار اور دوسرے بیٹر ارجمن یار بخش ارجو کے نام سے مشہور ضلع مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے اور بولروں کے لیے ہمیشہ درد سر ثابت ہونے والے اس وقت اننگز کا آغاز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یقینی طور پر السادات سوگڑ اگر اتنے بڑے ٹوٹل یعنی اس کی سیکنڈ ایڈیشن کے سب سے ہائیسٹ ٹوٹل کو چیز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس میں بڑا کردار نبھانا ہوگا رائٹ ہینڈ بیٹسمین ارجمن یار بخش کو. اور ارجو کو اب دیکھنا ہوگا کہ آج کے اس بڑے میچ میں زبردست اور اپنی کلاس شو کرتے ہوئے پاور پلے اور پاور پلے کے بعد لمبا کھیلنا ہوگا جب جا کے اس بڑے ٹارگٹ کو چیز کر سکتی ہے السادات سوپر کی ٹیم. اور ایز اے گیسٹ پلیئر یعنی آؤٹ سائڈر پلیئر کے طور پر ارجو نے جوائن کیا ہے السادات سوپر کی ٹیم کو. اور اس سے پہلے میچ میں بڑی زبردست بیٹنگ پرفارمنس شو کی تھی ارجو نے, لیکن آج ان کا کڑا امتحان ہے کمبائن اسٹار بڑگرام کے خلاف. ان کی اشد ضرورت ہے اور ایک ایسے مضبوط ٹیم کے خلاف اوپننگ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر پہلے سے بورڈ پر 215 رنز کا پھاڑا سیٹ کر چکے ہیں کمبائن اسٹار بڑگرام کی ٹیم. اور کنگلا سے آنے والے فاروق ہمارے ساتھی ابوبکر کیفین اور ہم سب کے دوست یہاں تشریف لا چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. اگر کوم باکس آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں. اننگز کا پہلا اوور کرنے کے لیے بال ڈیلیور کی ہے پاک شاہین کی جانب سے. کمبائن اسٹار بڑگرام کی جانب سے بولر نے حارث جو کہ آج کے میچ میں ان ہوئے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا نجم الدین کی جگہ وہ کس طرح پرفارمنس پیش کرتے ہیں. انہیں فیس کریں گے رائٹ ہینڈ بیٹسمین ارجو فرام مانسہرہ. حارث دوڑتے ہوئے امپائر کو کراس کرتے گیند کی پہلی گیند آف سائڈ یوسٹم اور نو بال کا اشارہ امپائر کی جانب سے. تو فری ہٹ کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا اب رائٹ آرم فاسٹ بولر حارث کو. اور ارجو مانسہرہ کے لیے یہاں سونے پہ سہاگا اس گیند کو جہاں فری ہٹ ڈیلیوری حارث ہے بولر. رائٹ آرم فاسٹ بولر پیش کریں گے ان کو رائٹ ہینڈ بیٹسمین ارجو. فری ہٹ ڈیلیوری پر ارجو کیا کر پاتے ہیں. ہیوی گو حارث نے دوڑنا شروع کیا, ایک بار پاپر امپائر کو کراس کیا اگین کی اور یہاں پر فری ہٹ ڈیلیوری کو لپیٹ کے کھیلنا چاہ رہے تھے, بیٹ ہوئے اگین سٹمپ سے ٹکرائی لیکن فری ہٹ ڈیلیوری تھی. رن بنانے کا موقع میسر نہ آ سکا اور نہ ہی کھلاڑی کو باول ڈریسنگ روم جانا ہوگا. تو فری ہٹ ڈیلیوری کو یہاں پر بچانے میں کامیاب رہے رائٹ آرم فاسٹ بولر حارث. اور ارجو ابتدائی 2 گیندوں میں اب تک پراپر طریقے سے بولر کی لائن اور لینتھ کو جج کرنے میں ناکام. اور جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بڑے ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے ارجو کا بلہ چلنا ضروری ہے. اور آج ارجو کو صرف اور صرف پاور پلے میں نہیں بلکہ لمبا کھیلنا ہوگا, ڈومینیٹ کرنا ہوگا فرام دی ورلڈ گو, جب جا کے السادات ٹوکر کی ٹیم اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا سکور چیز کرنے میں کامیاب ہوگی. حارث ایک مرتبہ پھر امپائر کو کراس کا آف سائڈ آف سم یہ گیند فلیش اینڈ فلیش ہارڈ اور گیند سیدھی گئی باؤنڈری لائن سے باہر. کور کی پوزیشن پر 6 رن کے لیے کسی بھی رائٹ ہینڈ بیٹسمین کے لیے کور کی پوزیشن پر چکا لگانا کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے رائٹ ہینڈ بیٹسمین ہی بتا سکتے ہیں. بڑا شاندار شاٹ تھا, آف سائڈ آف سم یہ گیند تھی, شارٹ آف لینڈ ڈیلیوری تھی, روم ملا ارجو کو, پیچھے ہٹے اپنے آپ کو اسپیس دیا اور فلیش کے اس گیند کو 6 رن کے لیے. جس آغاز کے لیے جانے جاتے ہیں وہی آغاز پرووائڈ کیا اپنے انڈیویجول اننگز کے لیے اور کمبائن اسٹار بڑگرام کے اننگز کے لیے ارجو نے. اس 6 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور بڑھتا ہوا
साथ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर हारिस एक मरतबा फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर अर्जू के लिए एम्पायर को क्रॉस स्लो वन डिलीवरी बीट हुए कंप्लीटली रिसीव करने में कामयाब रहे अर्जू को, लेकिन गेंद पेट पे लगने के बाद आई विकेट कीपर के पास टोट बोर्ड स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जगह ग्रीन ग्राउंड में मौजूद हैं और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर ऑल द वे शारजा से इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं। उनकी जानिब से ऑफर है हर तमाशाई के लिए कैच पकड़ने पर 5000 और आज के दिन 2 खुशनसीब तमाशाइयों ने गेंद को होल्ड किया है बाउंड्री लाइन के बाहर, तो 10,000 रुपये आज इफ्तिखार की जानिब से तमाशाइयों के लिए जाएंगे और मजीद अब इस इनिंग में देखेंगे कि मजीद कितने तमाशाई कैच करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा majestic shot from the right hand batsman Arju's bat, back of the land delivery, he pulled away towards the deep mid wicket, no chance for any fielder, and the fielder can only watch it, and the ball went over the deep mid wicket boundary for another half a dozen. Absolutely magnificent, और इसी तरह की शॉट्स दरकार है इस बड़े टारगेट को चेस करने के लिए अरसादात सगर की टीम को। 13 मजमूई स्कोर डबल फिगर में दाखिल होता हुआ बगैर किसी विकेट के नुकसान पर हारिस को अगर हारे हाथों लिया है फ्रॉम द वर्ड गो, तो दीगर आने वाले बॉलरों की क्या दुर्गत बनाएंगे। अर्जुमन यार बख्श फ्रॉम मानसरा, हारिस अंडर प्रेशर 2 छक्के ओवर में लग चुके हैं। एक मरतबा फिर अंपायर ने सार को क्रॉस किया, गेंद की फुल एंड डिलीवरी, इस गेंद को लेग लॉन्च किया, 1 रन बनाने का मौका था, उस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और उमर साबरी के बाद अर्जुमन यार बख्श भी वो वाहिद खिलाड़ी हैं काफी फुर्तीले और रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा शायद इनसे ज्यादा तेज कोई कर सकता हो। इमीडिएटली ऑफ होते हैं और नो टाइम में वो नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच जाते हैं। इनिंग्स में पहली दफा स्ट्राइक पर आ चुके हैं अजमेरा से ताल्लुक रखने वाले। इस मैच में अर्जुमन यार बख्श के ओपनर पार्टनर इब्रार अहमद फेस करेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस, जो कि आज एज ए गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं इस टीम में। नजमुद्दीन जो कि आज के मैच में गैर हाजिर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में अंबाइन स्टारबोर्ड राम की नुमाइंदगी कर रहे हैं हारिस। अब तक 2 छक्के लग चुके हैं हारिस को। ये गेंद बैकअप एंड डिलीवरी, इस गेंद को वाइट गली की पोजीशन पर खेले जहां पर साबिर मौजूद थे, जिन्होंने इस गेंद को बड़ी शानदार तरीके से फील्ड किया। रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। 5 गेंदें अब तक डिलीवर कर चुके हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस। इन 5 गेंदों में 14 रन बनाए हैं अर्जुमन यार बख्श ने। स्कोर के मुताबिक ओवर कंप्लीट हो चुका है। ओके थैंक यू। तो 6 गेंदों के बाद 14 मजबूत स्कोर, ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन बनाने में कामयाब रही अरसादात सोगर की टीम। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, उनको बताते चले कि आज के इस मैच में अरसादात सोगर के कैप्टन करीम सेठ ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो कि अनएक्सपेक्टेड फैसला था, क्योंकि अब तक जो भी टीम के कैप्टन टॉस जीतते हैं वो डायरेक्ट बैटिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन अरसादात 2 मैचों में टारगेट चेस करने के बाद शायद थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो गई और आज के मैच में उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और इनके इस फैसले को गलत साबित किया। द वन एंड ओनली जुल्किफल थ्रू आउट द टूर्नामेंट हर मैच में 50 स्कोर करने वाले कंबाइन स्टार की ओपनर बैटर ने आज अरसादात सोगर के तमाम बॉलरों के चारों खाने छिद करके ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट लगाकर एक सेंचुरी मुकम्मल की। लेकिन लगता यह है कि जुल्किफल की शानदार बैटिंग को बैक करने में अब तक इनिंग्स के दूसरे ओवर में नाकाम रहे उनके बॉलर। महबूब उस्मानी को वेलकम किया पहली बॉल पर, गेंद को सीधा के लिए डीप फाइन लेग की जानिब, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद लाइक अ ट्रेसेबिलिटी बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 18, इनिंग्स का ये दूसरा ओवर जारी। तो 198 मजीद रन चाहिए 113 गेंदों पर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था हमारी स्पॉन्सर का, जिन्होंने एक तमाशाइयों के लिए गेंद पकड़ने पर 5,000 रुपये का ऐलान किया है। इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बैटर के लिए उन्होंने 1000 मोटरसाइकिल का ऐलान किया है और इसके अलावा टॉप बॉलर जो सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब होंगे उस बॉलर के लिए भी 1000 मोटर बाइक और इसके अलावा अंपायर और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज, जो कि इंतहाई बहुत बड़ा पैकेज है। इसके अलावा हमारे मीडिया पार्टनर जिसके ओनर फजाद यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी उन्होंने ऐलान किया है मोटर बाइक। तो यकीनी तौर पर स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम मचाने वाले और लोकल क्रिकेट में इतना बड़ा स्पॉन्सर आज तक हमने नहीं देखा, जहां पर
तमाशाइयों के लिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट की हो। और इस बात से अब देखना ये पड़ेगा कि फिर कितना फ़ायदा उठाते हैं। और बैट्समैनों में तो रियाज और जुल्किफल का मुकाबला जारी है, एक दूसरे को आगे पीछे करते हैं। लेकिन आज जुल्किफल ने शानदार सेंचुरी बनाकर हैवी गो फुल टॉस डिलीवरी, आवेश मुझे मार, और आरजू को फुल टॉस गेंद करेंगे तो यकीनी तौर पर अपने साथ ज्यादती करने पर तुले हुए हैं। कदमों का इस्तेमाल, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, सिर्फ पावर टाइमिंग के जरिए इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कामयाब रहे 6 रन के लिए। और अल सादात सोकर 216 रन का टारगेट का पीछा करती हुई इस वक्त 1.2 ओवर में 24 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है। 7 गेंदों का सामना करके अर्जमन यार बख्श ने अब तक 23 रन बनाए हैं। और जिस तरह मैं पहले फ्रॉम द वर्ड को बता चुका हूं कि अर्जमन यार बख्श विल बी द मैन फॉर अल सादात सोकर। इफ दे वांट टू चेज दिस टारगेट, अर्जमन यार बख्श विल बी बैट very quick fire and will be back till the end। और इसी बात पे अमल करते हुए अर्जमन यार बख्श इस वक्त हारिस के बाद महबूब उस्मानी को भी आड़े हाथों लेने में मसरूफ है। 2 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं महबूब उस्मान के अगेंस्ट। अर्जमन यार बख्श फेस करेंगे महबूब को, और अच्छी गेंद, बड़ा अच्छा कमबैक महबूब उस्मानी की जानिब से। अंदर आती हुई गेंद पैर से टकराने के बाद करीब रही महबूब उस्मानी की ये गेंद, गोल स्कोर पर मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। तो इस मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर रिक्वायर रेट जो है वो इस वक्त 10.38 है, जबकि करंट रन रेट जो है वो 116.00 है। टारगेट 216 यानी केएसएल सेकंड एडिशन का सबसे बड़ा स्कोर आज केएसएल सेकंड एडिशन के 14वें मैच में चेज करने जा रही है सादात सोकर की टीम। महबूब उस्मानी एक बार फिर आई गेंद की डाउन द लेग साइड, break off the wrist once again. Stay to your legs, Booty. No need to run after this ball because this ball is traveling like a bullet rocket toward the boundary, and you will not be able to stop this ball inside the boundary. And yes, it does. The ball crossed the boundary in no time. Another magnificent, majestic, a stunning shot from the right-hand batsman अर्जुमन यार बख्श बैट्स। और इस चौके के साथ मजमूई स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ 28 विद लॉस ऑफ 2 विकेट। 88 मजमूई स्कोर, इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जुमन आज किस खतरनाक मूड में है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि 216 नहीं, अगर 250 रन भी होते, अर्जुमन यार बख्श अगर इसके 14वें ओवर तक क्रीज पर रहे तो यकीनी तौर पर टारगेट को चेस करने में कामयाब हो जाएंगी अल सादात सोकर की टीम। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इस गेंद को पुल करने गए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने से कासिर रहे। गेंद आकर टाई पेट के करीब लगी और इस पेन के शिकार हो चुके हैं राइट हैंड बैट्समैन। और अल सादात सोकर की टीम जो है यकीनी तौर पर अर्जुमन यार बख्श से ज़्यादा पेन फील कर रही होगी, क्योंकि उनको अंदाज़ा है और यहाँ पर खड़े हुए तमाशाई क्रिकेट को भी अंदाज़ा है, इवन के कंबाइन स्टार बलराम के कैप्टन और इनकी टीम को भी अंदाज़ा है कि अगर इस मैच में कामयाब होना है और इस मैच को जीतना है तो आपको जल्द से जल्द अर्जुमन यार बख्श को वापस टेस्ट ग्रुप राह दिखानी होगी। अदरवाइज इस मैच में कामयाबी हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इतवार के दिन यानी 21/9/2025 के बड़े मुकाबले में खालिद गंडापुर इसके सेकंड एडिशन के मैच के चीफ गेस्ट होंगे, जो कि यहाँ तशरीफ लाएंगे हम हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार के बिहाफ पर। तो एक बार फिर इनका थैंक यू। और खालिद गंडापुर इतवार वाले दिन के मैच के चीफ गेस्ट होंगे। तो यकीनी तौर पर इतवार के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड होता है, तमाशाई क्रिकेट हद से ज़्यादा की तादाद में यहाँ आते हैं। और शायद बात है इस वक्त यहाँ पर कंबाइन स्टार बलराम के लिए नहीं बल्कि सादात कलंदर की सादात सोकर की टीम के लिए कि अर्जुमन यार बख्श जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और पानी पीने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन संभालेंगे। अंपायर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं आज जहूर, जो कि पीसीबी के मास्टर रीजन के पैनल में शामिल प्रोफेशनल अंपायर हैं, लेकिन आज अपनी निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ नहीं आ सके। उनकी जगह निसार आलम, जो कि केएसएल सेकंड एडिशन के वाइस चेयरमैन भी हैं और श्रीलंकन अंपायर कुमार धर्मसेना के नाम से फेमस है यहाँ केएसएल में, आज फराइज अंजाम दे रहे हैं एज अंपायर। अब देखना पड़ेगा कि इनकी मौजूदगी में ये मैच पर वक्त ख़त्म होता है या नहीं। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है तो बलराम के लोकल अंपायर जो है उनकी बस की बात नहीं है मैच को प्रॉपर टाइम पे ख़त्म करना।
क्योंकि दीगर खिलाड़ी जो हैं उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली माहौल में रहते हैं और उनकी बात को सीरियस ज़्यादा नहीं लेते हैं। यही वजह है कि ज़हूर भाई को जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल अपनाए हुए हैं और हर बॉलर को जल्दी से जल्द यूटिलाइज़ करने का मशवरा देते हैं। विनिंग कैप्टन पर उनका अच्छा खासा दबाव होते हैं और तभी तो हर मैच जो है प्रॉपर टाइम पर ख़त्म होता है। आज निसार आलम साहब और तेज मोहम्मद के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अब देखना पड़ेगा इस चैलेंज को इस तरीके से निभाने में कामयाब होते हैं या नहीं। महबूब उस्मानी इनिंग्स का दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर करने में मसरूफ काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम, जिसमें इंजरी का शिकार भी हुए अर्जुमन, लेकिन इसके बावजूद दोनों बॉलर जो है लॉन्ग रन के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं। महबूब उस्मानी लेफ्ट स्टेशन आया पार में सारा क्रॉस किया, अगेन की डाउन द ग्राउंड वंस अगेन अनदर गुड शॉट, लेकिन इस दफा जो है फील्डर डीप मिड विकेट से आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन बनाने का मौका था, इसे एक रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा था बैट्समैन को। इस एक रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 29 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अब तक 29 रन बनाने में कामयाब रही। अर्जुमन यार बख्श की इंतहाई वेल्यूबल विकेट की तलाश में है कम्बाइन स्टार की कैप्टन और उनकी पूरी मैनेजमेंट है, क्योंकि उनको अंदाजा है कि दीगर बैट्समैन भी अच्छा खेल सकते हैं तादाद से ऊपर की जानिब से, लेकिन अर्जुमन यार बख्श जिस तरह बॉलर के लिए दर्दसर साबित होते हैं, उनके यहाँ एक लफ्ज़ है कि नो रिस्पेक्ट फॉर एनी बॉलर, और वो किसी भी बॉलर को आड़े हाथों लेने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो महबूब उस्मानी हो, हारिस हो, कोई भी बॉलर हो। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ आपको बमुश्किल ही 2 प्लेयर नजर आएंगे जो स्विच हिटिंग करते हैं, जिसमें इंग्लैंड के साबका कप्तान, साउथ अफ्रीका नसाद केविन पीटरसन हैं, और ऑस्ट्रेलियन के साबका ओपनर डेविन वार्नर जो है वो स्विच हिटिंग करते थे। लेकिन लोकल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम में अब तक कोई नहीं। अलबत्ता लोकल क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले अर्जुमन यार बख्श वाहिद क्रिकेटर है जो स्विच हिटिंग करना जानते हैं। इनिंग्स का तीसरा ओवर करने के लिए शायद मेरी ये बात अर्जुमन यार बख्श को ज्यादा पसंद आई। इमीडिएटली उन्होंने स्विच हिटिंग करने का ठान लिया और पहली गेंद को प्रॉपर तरीके से मिडल करने से कासिर रहे। टोटल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर विद 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। केएसएल एट इज बेस्ट। केएसएल 2 के बहुत ही बड़े स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार अहमद दारुल महबूब रेस्टोरेंट के ओनर ऑल द वे दुबई शारजा से इस वक्त बराह रास्त इस मैच को देख रहे हैं, और यहाँ पर जबरगाम से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर साबिर की आज शमूलियत हुई है कंबाइन स्टार में, और साबिर ने अपनी शमूलियत बिल्कुल दुरुस्त साबित करते हुए अर्जुमन यार बख्श जो कि किसी खतरे से कम नहीं थे, आज उनको बोल्ड करके वापस पैलन की तरफ रवाना कर दिया। अर्जुमन यार बख्श जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे थे और हर दूसरी गेंद को इंतहाई आसानी के साथ बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए थे, लेकिन साबिर ने इन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं उमर साबरी, और उमर साबरी के काम से ताल्लुक रखने वाले साबिर। अब देखना पड़ेगा कि नए आने वाले बैट्समैन जो टूपन डाउन विकेट पर बैटिंग करने के लिए आए हैं एज अ गेस्ट प्लेयर है अरसलान फ्रॉम मानसेरा से इनका ताल्लुक है। अब देखना पड़ेगा कि इनके कोलीग्स अर्जुमन यार बख्श के आउट होने से जो कला पैदा हुई है ऊपर करने में कामयाब होते हैं या नहीं। साबिर की एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को पंच किया, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की जानिब, जहाँ पे मौजूद थे, रन बनाने का मौका हासिल ना आ सका। और अब एनर्जी लेवल जो है वो कम्बाइन स्टार के फिटरों की थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि इनको अंदाजा है कि अर्जुमन यार बख्श जो है वो अब वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं, और अब इस रिक्वायर्ड रेट को चेस करना यकीनी तौर पर बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आउटसाइड द लेग इस गेंद को पिच किया है। इमीडिएटली अंपायर ने इस बात को माइंड में रखते हुए इस अपील को रद्द किया। अलबत्ता अच्छा ओवर अब तक साबिर की जानिब से
ٹول بورڈ اسکول میں مزید کسی کا اضافہ نہ ہو سکا. مسٹر افتخار جو کہ سیکنڈ ایڈیشن کے مین اسپانسر ہیں اور اسپانسرشپ کی دنیا میں دھوم مچانے والے لوگوں کرکٹ میں خاص طور پر پروگرام کے اسپانسر کے لیے انہوں نے بہت بڑا چیلنج کریٹ کیا ہے, کیونکہ آنے والے دور میں اب جو بھی بندہ اسپانسر کرے گا کسی بھی بڑی لیگ کو تو وہ کیسے بیٹ کرے گا مسٹر افتخار کو. ان کی دیگر اعلانات اور دیگر پیکیج تو چھوڑے, صرف کراؤڈ کے یہ جو 5,000 روپے کا اناؤنسمنٹ ہے اس کو بیٹ کرنا یقینی طور پر کسی بھی اسپانسر کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ مسٹر افتخار کی اس کاوش کو کس حد تک کامیاب بناتے ہیں. یہاں پر شائقین کرکٹ اتفاق مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہو چکے دونوں بیٹسمین, اور مسٹر افتخار جو ہے کیونکہ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہوتے ہیں وتھ فیملی, اس وقت اس میچ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں, لیکن ہر میچ میں اپنے خاص بندے مسٹر عبدالوہاب اور ملک عامر کو یہاں ضرور بھیجتے ہیں گراؤنڈ پچ اور میچ کی صورتحال انفارمیشن لینے کے لیے. اور آج بھی عبدالوہاب صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں آن دا بہاف آف آرگنائزر کمیٹی, اور سب کی طرف سے ان کو ویلکم. ایک اور اچھی گیند آف سائڈ ٹو اوسٹم, صابر کی اس گیند کو کٹ کیا, پوائنٹ کی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے فیلڈر نے گیند کو فیلڈ کیا, رن بنانے کا موقع میسر نہ آ سکا. ٹول بورڈ کو اگر سے فاصل رہے تو ٹاس ہارنے کے بعد 16 رن بنانے کے بعد کبائے صاحب کی اس ٹوٹل کا پیچھے کرتی ہوئی افسادات اور اسکور کی نمبر یہاں پر 29 کا ایک کھلاڑی آؤٹ پر واپس آؤٹ ہونے والے بیٹسمین کوئی اور نہیں تو ون اینڈ اونلی مسٹر ریلائبل پہ کافی ڈیپینڈ کر رہی تھی انجمن یار. تو 3 اوور کے اختتام پر 29 مجموعی اسکور, اس سے پہلے کی اننگز کا چوتھا اوور شروع ہو جائے. مزید رواں تبصرہ جاری رکھیں گے میرے ساتھی کمنٹیٹر ابوبکر صدر. ہلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر گرین شگئی کوزا بانڈا کے خوبصورت گراؤنڈ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور جن ساتھیوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلے کہ آج کے اس بڑے میچ میں جب ٹاس ہوا تو ٹاس کا سکہ اچھلا السادات سوکڑ کے بخش میں, اور انہوں نے پہلے بلے بازی کے بجائے گیند بازی کا فیصلہ کیا, اور ان کی پہلی دعوت پہ کھیلتے ہوئے کمبائن سٹار بٹگرام کی ٹیم نے 215 رنز پہاڑ جیسا ٹارگٹ, ٹوٹل ان کے سامنے 216 رنوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. محبوب عثمانی ایک بار پھر ڈاؤن دا لیگ سٹمپ اگین. امپائر یار محمد سید کو ایکسرسائز کرنا پڑا وائڈ کا اشارہ دینے کے لیے. اس 1 رنز کے مزید اضافے سے کل مجموعہ 34. ایک وکٹ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے بیٹر درد سر بننے والے جنہوں نے پہلے ہی اوور سے لاٹھی چارج شروع کی تھی, ارجمن یار بخت ارجو آل دا وے فرام مانسیرا, جن کی وکٹ کی تلاش تھی کمبائن سٹار بٹگرام کی ٹیم کو, اور وہ وکٹ ہو جلد لے چکے ہیں اور ارجمن یار بخت کو واپس ڈگ آؤٹ کی طرف بھیجنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. محبوب اور اس بار اونچا کھیلے ہے تو 3 فیلڈر گیند کے نیچے آنے کی کوشش میں, گیند ان کے درمیان میں گری ہے اور اسی اسنا رنز بنانے کا موقع تھا, ٹرائی کو روٹیٹ کرنے کا موقع تھا دونوں بیٹرز کے پاس, اور اس 1 رنز کے مزید اضافے سے کل مجموعہ 35. جہاں پہ جس طرح آغاز کیا تھا اور جس طرح ہم کرکٹ کی دنیا میں کہتے ہیں کہ آغاز بسم اللہ سے اور انجام خدا جانے کہ کیا بنے گا اس مقابلے کا, کون سی ٹیم ونر ٹیم ہوگی. گیند اور بیٹ کے درمیان اس کشمکش میں اب تک مقابلے میں ٹویسٹ ہے. شروع کے اننگز میں بھی ذوالکفل کے چاروں اطراف کے سٹروک, اور اس اننگز میں ارجمن یار بخت کی شروعات تھا, لیکن ان کی وکٹ جلد گوائی ہے السادات سوکڑ کی ٹیم نے, اور اسی وکٹ کا خمیازہ بھگتنے کے لیے یہاں پہ کافی تگدو کرنا ہے. ابرار اور ارسلان جو کہ اس وقت کریز پہ ہے, 1 ڈاؤن کی پوزیشن پر آنے والے ارسلان جن کا تعلق ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہے, اور ان کا ساتھ نبھانے والے ابرار جو کہ بٹگرام سے ہی تعلق رکھتے ہیں. دونوں اچھے بیٹر ہیں لیکن ان کے سامنے ٹارگٹ بہت بڑا ٹارگٹ ہے. ہر ڈاٹ گیند آپ کے درد سر میں اضافہ کرے گی, ہر ڈاٹ گیند آپ کے لیے درد سر بنے گی, اور یہی کچھ کرنے میں مصروف ہے کمبائن سٹار بٹگرام کے ستارے. اور آج کے اس بڑے ٹوٹل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے محبوب عثمانی حارث اور صابر کو اب تک آزما چکے ہیں.
कंबाइन स्टार बटग्राम के स्किपर हिदायत। और जिस तरह आज हम जिक्र कर रहे थे कि जुल्किफल का साथ निभाने वाले जुनैद आज टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी कमी को आज पूरा कर दिया है उमर साबरी ने, और उन्होंने इनिंग्स का आगाज करने वाले टीम के स्किपर हिदायत के जल्द आउट होने के बाद और वन डाउन की पोजीशन पर आने वाले तरसद्दा ही से ताल्लुक रखने वाले हारिस भी ज्यादा देर तक जुल्किफल का साथ नहीं निभा पाए, लेकिन उमर साबरी जिस तरह साथ निभा चुके थे जुल्किफल का, जिसका पूरा लाभ उठाया बटग्राम कंबाइन स्टार की टीम ने और स्पेशली जुल्किफल ने, और बाद में उजैर ने मैच के लास्ट स्टेज में साथ निभाते हुए अपने टोटल को 215 तक पहुंचाने में कामयाब हुए और मजमूई तौर पे इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर जुल्किफल और इनफरादी तौर पे एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 126 रनों का इनिंग्स खेलने वाले जुल्किफल, जो कि आज बड़ा अच्छा किरदार निभा चुके हैं अपनी टीम के लिए। डाउन द लेग स्टंप अगेन, बहुत ही शानदार कमिटमेंट विकेट कीपर की जानिब से, अपने बाएं जानिब डाई लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। विकेटों के पीछे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट इस तरह की विकेट कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता, जहां पे गेंद पड़ने के बाद काफी तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों तक आती है, लेकिन उमर चंदा की बड़ी उम्दा एफर्ट यहाँ पे विकेटों के पीछे यकीनी तौर पे उन्होंने 4 रन बचा लिए हैं अपनी टीम के लिए। कुल मजमुआ 37, 3.5 गेंदों का गेम हो चुका है। शुरू के 12 गेंदों में 28 रन बने थे जब अर्जुमन यारबाग क्रीज पे थे, उनका बल्ला पहले ही गेंद से चल पड़ा था, लेकिन जो कुछ करना था उनकी टीम के लिए वो नहीं कर पाए अर्जुमन यारबाग और जल्द अपनी विकेट गवा बैठे। 4 के बाद कुल मजमुआ 37, मैंडेटली पावर प्ले के अब तक 4 ओवर में 37 रन बना चुकी है कंबाइन स्टार बटेग्राम के अगेंस्ट अल-सादात सोकड़ की टीम। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं अपने मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान का, जो कि इस वक्त शारजा दुबई में है और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, और इनके अलावा हमारे दीगर स्पॉन्सर उनके भी हम इंतहाई मशकूर है। और ईडन गार्डन इस्लामिक स्कूल की जानिब से हर सेंचुरी मेकर के लिए 5,000 रुपए का ऐलान है, तो आज उनके हकदार ठहरे हैं जुल्किफल, जो कि इस लीग के तीसरे सेंचुरी मेकर है। इससे पहले रियाज सागर, चपरग्राम मारखोर के स्किपर जवाद और आज तीसरे बनने वाले खिलाड़ी जुल्किफल, जिन्होंने सेंचुरी मेकर का एजाज अपने नाम किया और 126 रनों की उन्होंने इनिंग्स खेली। और इनके अलावा हमारे दीगर स्पॉन्सर हम सब के तहे दिल से मशकूर है, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस ग्राउंड को बनाने में अपना किरदार निभाने वाले मेरे भाई रिजवान, इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में है, लेकिन इनके एक और साथी रिजवान जिन्होंने कल रात को हमसे रब्ता किया था, सऊदी अरबिया में है अशरफ खान अखुनखेल, जिनका ताल्लुक गांव पोड़ा से है, और उनकी जानिब से कुछ ऐलानात भी हुए हैं, तो हम उनके मशकूर हैं। और वो भी इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं और हमारे साथ राब्ते में है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट, जिसमें हमारे बुजुर्ग नन्हे मुन्ने पुरस्तार क्रिकेट की दुनिया के सितारे जो कि ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद है, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये लीग आपके लिए है और आप इसी लीग के लिए और इस ग्राउंड की खूबसूरती आपसे है, तो हम आपके इंतहाई मशकूर। इस बार डाउन द लेग स्टंप हल्का सा ने ग्लास किया इस गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। काफी देर बाद चौका देखने को मिला अरसलान के बल्ले से। अरसलान आज जिस लेवल के और जिस काम के लिए वो पहचाने जाते हैं उसी तरह नहीं खेले हैं। अब तक 9 गेंदों में 5 रन बना चुके हैं। एक बार फिर स्टंप टू स्टंप ही गेंद सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले है लॉन्ग ऑन की जानिब। तो यहाँ पे एक और विकेट गवाई है अल-सादात सोकड़ की टीम ने।
ابرار بھی زیادہ دیر تک پہلے مقابلے کی طرح نہ ٹک سکے اور لیگ بھی پور اپنی وکٹ گوا بیٹھے ہیں، بالکل سٹمپ کے سامنے تھے، ہلکی سی اپیل کی وکٹ کیپر اور بالر نے، اور امپائر کی انگلی پہ سامنے اچھلی اس بات کا اشارہ ہوتے ہو چکے ہے کہ اب آؤٹ ہے۔ تو دونوں اوپنر بیٹر ارجمن یار بخت اور ابرار آؤٹ ہو کے واپس جا چکے ہیں۔ یہ دو بڑی کامیابیاں ہے بٹاگرام کمبائن اسٹار کی ٹیم کے لیے، کیونکہ یہ دونوں بیٹر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑی ٹیم کے خلاف اچھے سے اچھے بالر کے سامنے میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت ہے ان دونوں کھلاڑیوں میں، لیکن ارجمن یار بخت اور ابرار دونوں کچھ زیادہ نہ کر سکے اور اپنی اپنی وکٹ گوا بیٹھے ہیں۔ مینڈیٹلی پاور پلے کے 5ویں اوور کا گیم جاری ہے اور دونوں اوپننگ بیٹر واپس جا چکے ہیں۔ ذوالفقار کی طرح ذمہ دارانہ اننگز کھیلنے کی ضرورت ہوگی یہاں پہ۔ ارسلان یا کوئی اور بھی بیٹر ہو السادات سوکڑ کی جانب سے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے اور اس ٹارگٹ کا پیچھا کرنے کے لیے، ورنہ ارسلان اور راؤنڈ آرڈر اور میڈل آرڈر میں آنے والے کھلاڑیوں کے جلد واپس جانے کے بعد اس میچ میں جیت حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا کمبائن اسٹار بٹگرام کی ٹیم کے لیے، اور جہاں پہ بڑے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے کے لیے آپ کے لیے ویسے بھی ہر ڈاٹ گیند دردِ سر بنتی ہے، اور جب آپ ڈاٹ گیندوں کے ساتھ ساتھ وکٹیں بھی گواتے ہیں تو یقیناً آپ کے مشکلات اور آپ کے لیے ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت عمر جو ریکوائرڈ رن ریٹ ہے وہ 11.6 کی ہے اور کرن رن ریٹ جو ہے وہ 8.4 کی ہے۔ 5 اوور کے بعد کل مجموعہ 42، 90 گیندوں میں 174 رنز مزید درکار ہے اس مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے، اور 8 وکٹ ابھی بھی ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے بعد جن بالروں کو آزمایا ہے عمر کمبائن اسٹار بٹگرام کی ٹیم نے، ان کے علاوہ ایک اور بالر کو آنا ہے عمر صابری کو، جو ہمیشہ جس بھی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور جہاں ان کی ضرورت پڑی ہے اور کپتان نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے کیپٹن کو مایوس نہیں کیا ہے، گیند نے باؤنڈری لائن کا رخ کیا ہے اور بالآخر گیند باؤنڈری لائن سے باہر 4 رنز کے لیے شارٹ سکوئر لیگ سے دوڑ لگا کے اس گیند کو روکنے کی کوشش ضرور کی یہاں پہ کئی فیلڈر بختیار نے، لیکن گیند تک نہ پہنچ سکے اور گیند نے باؤنڈری لائن کا رخ کیا 4 رنز کے لیے۔ اس چوکے کے ساتھ کل مجموعہ 46، 43، 5.1 گیند کے بعد مینڈیٹلی پاور پلے کا آخری اوور، ذوالفقار بالنگ کروانے میں مصروف، ایک بار پھر بڑے سٹائلش انداز سے اس گیند کو کھیلنے میں کامیاب، لیکن باؤنڈری لائن کو عبور نہ کر سکے۔ ڈیپ سکوائر لیگ پہ فیلڈر موجود تھے عمر صابری، جو کہ کافی چست اور چاق و چوبند ہے، اور گیند تک رسائی حاصل کرنا اس سے بہتر کون جانتا ہے، اور انہوں نے گیند تک رسائی حاصل کی، گیند کو روکنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اسکور بدستور 47۔ اس وقت بیٹنگ کرنے میں مصروف ہے آخونزادہ جنید، انہوں نے 3 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد اپنا کاؤنٹ اوپن نہیں کیا ہے، اور ان کے ساتھی ارسلان 12 گیندوں میں 7 رنز بنا چکے ہیں۔ اس بار گیند کو اونچا کھیلے ہے محفوظ شاٹ، ایک ٹپا کھانے کے بعد گیند ڈیپ میٹ وکٹ باؤنڈری لائن سے باہر 4 رنز کے لیے، اور اس چوکے کے ساتھ اسکور مزید آگے بڑھتا ہوا جا پہنچا ہے 47۔ 50 رنز مکمل ہو چکے ہیں اور آخونزادہ جنید اپنا کاؤنٹ اوپن کر چکے ہیں۔ بڑی سٹرانگ اپیل، لیکن امپائر نے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا ہے۔ کوئی نقصان نہیں، کوئی پریشانی نہیں السادات سوکڑ کی ٹیم کے لیے، لیکن 2 وکٹیں اور انتہائی اہم وکٹیں گوا بیٹھی ہے السادات سوکڑ کی ٹیم۔ ذوالفقار ایک بار پھر اندر آتی ہوئی گیند، بڑی سٹرانگ اپیل، اور بالآخر امپائر کی انگلی فضا میں۔ آخونزادہ جنید بھی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے اور اپنے دونوں اوپنر بیٹرز ارجمن یار بخت اور ابرار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صرف 3-4 گیندوں کے مہمان بنے اور 4 رنز بنانے کے بعد لیگ بھی بور آؤٹ ہو کے باجل قدموں کے ساتھ ڈگ آؤٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ عمر رن ضرور چرائے ہیں، رن ضرور بٹورے ہیں السادات سوکڑ کی ٹیم نے، لیکن وکٹ پہ سٹے کرنا
जो कि बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। विकेट पे स्टे नहीं की है अभी तक दोनों ओपनर बैटर्स के अलावा। वन डाउन की पोजीशन पर आने वाले अरसलान इस वक्त क्रीज पे है, लेकिन थर्ड डाउन मिडल ऑर्डर की पोजीशन पर आने वाले जुनैद आखुनजादा अपना विकेट गवा बैठे हैं और उनके आउट होने के बाद क्रीज को ज्वाइन करेंगे शहरयार और उनका साथ निभाने वाले क्रीज पे पहले से मौजूद अरसलान ऑल द वे फ्रॉम मानसेरा। पावर प्ले का कोटा कंप्लीट हो चुका है। 6 ओवर के बाद कुल मजमुआ 51, 3 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले कि इनिंग्स का 7वां ओवर डिलीवर करने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदारी किसी बॉलर के कांधों पे डाली जाए, मैं कमेंट्री की जिम्मेदारी डालूंगा उमर के कांधों पे, को आगे कांको देखा हाल आपके सामने शेयर करें। प्रिया अबू बकर कम में मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 216 रन जैसा बड़ा टारगेट पीछे कर रही है। इस वक्त 7-8 ओवर की टीम और फ्रॉम दी बर्ड ग्रुप का शिकार हो चुकी है। अब तक जबरदस्त लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए हैं तमाम बॉलर, जहां पर कंबाइन स्टार बटराम के और पहले 2 ओवरों में जहां पर अर्जुमन यार बख्श ने हिटिंग की और गेंद को बड़ी आसानी के साथ बॉडी लाइन से बाहर भेज दिया है। उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने थोड़ी सी सेंसिबल क्रिकेट खेली और के बावजूद अपनी विकेटें गंवा ली। फिर आ रहे हैं नए बैटर सलाम का साथ निभाने के लिए। एक और अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड की गेंद पाए का इशारा की वाइट बॉल। इस वाइट बॉल के साथ समय इजाफा, इस इजाफे के साथ मजबूत स्कोर बढ़ता हुआ 53 1 विकेट के नुकसान पर। याद रहे कि 163 मजीद रन चाहिए 83 बॉल पर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 7-8 ओवर की टीम को ऑफ साइड की ऑप्शन ये गेंद थोड़े से शफल करते हुए लेग साइड की तरफ अपने आप को रूम दिया खबर की जानिब खेल कर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला यहाँ पर शहरयार को। इस 1 रन के साथ शहरयार ने अपना इंफरादी अकाउंट खोला। 1 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 54 विकेटों के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस गेंद को स्वीप किया, लेकिन उमर साबरी को आप कहीं भी क्वाइट नहीं रख सकते। फुल कमिटमेंट डाइव फॉरवर्ड करते हुए इस गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर थी। फुल कमिटमेंट शो करते हुए और इस स्थान में एक मरतबा फिर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनने का मौका फराम हुआ। इस 1 रन के इजाफे के साथ 55 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी हार्ड हिटिंग करनी होगी अरसलान जैसे बैट्समैन को जब जाके इस रिक्वायर्ड रेट को अचीव किया जा सकता है। अदरवाइज सेंसिबल क्रिकेट से अब 216 रन के टारगेट को चेस करना यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किल होगा। शहरयार और अरसलान जो कि मेन बैटर हैं और उम्मीदों के महवर बन गए हैं अब अर्जुमन यार बख्श के आउट होने के बाद 7-8 ओवर की टीम के लिए। अब देखना पड़ेगा कि अपनी टीम की मैनेजमेंट, कैप्टन और सपोर्टर की उम्मीदों पर पूरा उतरकर आज फिल की तरह शानदार बैटिंग करके ग्रीन ग्राउंड में आए हुए तमाशाइयों को और अपनी मैनेजमेंट को खुश करने में कामयाब होते हैं या नहीं। हाबिर फ्रॉम चपरगाम से जिन्होंने आज इंतहाई वैल्यूबल विकेट हासिल की अर्जुमन यार बख्श की, जो कि काफ़ी खतरनाक अंदाज से बैटिंग करने में मसरूफ थे और 2 ओवर में उन्होंने गालिबन 25 रन बनाए थे। पहले ओवर में 2 छक्के और दूसरे ओवर में उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाए थे। इन जल्द उन्हें पकड़ने की राह दिखाने पर मजबूर किया साबिर ने और अब तक साबिर अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। 9 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को पकड़ने की राह दिखाई है। काफ़ी अच्छा फिगर है आज के इस हाई स्कोरिंग गेम में। दूसरी जानिब अरसलान जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है, यकीनी तौर पर इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और देखना पड़ेगा कि अरसलान कब अपने बल्ले को मतलब की नींद से बेदार करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि रनों की रफ्तार को तेज़ करना होगा और रिक्वायर्ड रेट जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। बाद में इस रिक्वायर्ड रेट को आने वाले बैट्समैनों के लिए अचीव करना यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किल होगा और इस बात को माइंड में रखते हुए शहरयार और अरसलान दोनों को दोनों एंड से रन बनाने होंगे। अदरवाइज इस पेज पर बड़ा जल्दी ग्रिप मजबूत करने में कामयाब हो जाएगी कप्तान की टीम। जुल्किफल का दिल अभी भरा नहीं। 125 रन बनाने के बाद उन्होंने अपने पहले ओवर में अपनी ज़्यादा जुनून की विकेट भी हासिल की कप्तान की टीम के लिए। इन तौर पर आज के टेस्टी परफॉर्मर और पक्के मैन ऑफ द मैच के हकदार ठहरे हैं अब तक। अगर अरसलान कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारकर्दगी पेश ना करे तब शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी बैकवर्ड पर जाकर इस गेंद को पुल जरूर किया, लेकिन वहां पे सेफ हैंड वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ कंबाइंड स्टार बडग्राम उमर साबरी मौजूद थे, जिन्होंने डाइव लगाते इस गेंद को जरूर रोका, लेकिन 2 रन बनाने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को।
इस दौरान के इजाफे के साथ 59 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर जुल्किफल ने आज इंतहाई शानदार खेल पेश करके 125 रन की इनिंग्स के लिए। आज लग रहा था कि जुल्किफल थोड़े से प्रेशर में होंगे क्योंकि इनके मेन ओपनर पार्टनर जुनैद अफरीदी जो कि थ्रो इस केसल में इनके साथ इनिंग्स का आगाज करने के लिए आते हैं, अंडर 19 क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ भी खेल चुके हैं जुनैद अफरीदी। लेकिन आज उनका ना होना कंबाइन स्टार की टीम के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा साबित हुआ क्योंकि वो जो प्रेशर था वो जुल्किफल पे आया और जुल्किफल ने क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस शो करते हुए आज इस प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके ऐसा ओपनर आए और 125 रन की शानदार इनिंग्स के लिए फ्लाइट डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टम्प और इस गेंद का भरपूर फायदा उठाने में कामयाब रहे अरसलान। इस गेंद को कवर की जानिब खेलने में कामयाब, गेंद सीधी गई डीप एक्सट्रा कवर की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर 65 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से अब भी कुछ नहीं खत्म हुआ आजाद सोकर की टीम के लिए और एक आधा प्लेयर अगर यहाँ से तेज कहना शुरू कर दें और क्विक फायर करे और वो अरसलान ही हो सकते हैं फ्रॉम मानसेरा। ऑफ साइड ऑफ स्टम्प अनदर फ्लाइटेड डिलीवरी और इस गेंद को लपेट के खेले, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर, एक और बुलंद वाला चक्का और 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 71 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 8वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो जुल्किफल को एज अ बॉलर आड़े हाथ लिया है यहाँ पे अरसलान ने और इस ओवर में काफ़ी अच्छे रन बटोरे हैं अरसलान ने और इसी तरह कंटिन्यू रखना होगा, अपने मोमेंटम को छोड़ना नहीं होगा राइट हैंड बैट्समैन अरसलान को क्योंकि इस मैच में सर्वाइव करने के लिए आपके पास और कोई रास्ता है नहीं वहाँ से बाहर गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने के। अब देखना ये पड़ेगा कि अरसलान इसी मोमेंटम को जारी रखते हुए मजीद तेजी के साथ रन बनाकर सादात सोगर की टीम के लिए इस मैच को क्लोज और फिर एंड में विन करवाने में मदद देते हैं या नहीं। फिलहाल सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब नहीं है, सादात की 71 रन बने हैं 8 ओवर्स में, ऑलमोस्ट 8.92 रन रेट है और रिक्वायर रेट जो है 12.08 है जो कि नाउ डेज फास्ट क्रिकेट हो रही है और शॉर्ट फॉर्मेट में ये रिक्वायर रेट अचीवेबल है। लेकिन एक आधे बैट्समैन को क्विक फायर करना होगा जब जाके टारगेट को अचीव कर सकते हैं और जिस तरह से जुल्किफल ने एक एंड से क्विक फायर करते हुए कंटिन्यू मोमेंटम को रखा और रन के अंबार लगाते गए, दूसरे एंड से बैट्समैन उनका भरपूर साथ देते रहे और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। यही कुछ करना होगा यहाँ पे शेरियार और दीगर आने वाले बैट्समैनों को अगर अरसलान अपनी जगह पे सेट होते हैं और हर गेंद को बड़ी आसानी के साथ कॉर्नर से बाहर फेंकने में कामयाब होते हैं। अब तक अरसलान खान ने 18 गेंदों का सामना करके 22 रन बनाए हैं और विकेट रिस्क करके ये रन बनाए हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं तब उन्होंने, लेकिन ये रिस्क का जो सर्कल भी बढ़ाना पड़ेगा अरसलान को जब जाके कुछ ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद बड़े खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को कट किया लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा बैकफुट पॉइंट पर मौजूद कैप्टन कमाल स्टार हिदायतुल्लाह की जानिब से डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। यकीनी तौर पर पीछे फील्डर नहीं थे, अगर ये गेंद जाती तो 4 रन मिलते। यहाँ पर सादात सोकर की टीम को 4 रन अपनी टीम के लिए बचाने में कामयाब कमाल साथ ही कैप्टन फील्डिंग आज बड़ी जबरदस्त हो रही है और इस दफा उमर साबरी ने आते ही अपना काम कर दिखाया। एज आई मेंशन अर्लियर कि उमर साबरी जो है वो कंप्लीट पैकेज है किसी भी कैप्टन के लिए, चाहे एज अ बैट्समैन उन्हें इस्तेमाल करे, एज अ बॉलर यूटिलाइज करे या एज अ फील्डर। बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट, बेहतरीन बैट्समैन और चालाक क्लेवर बॉलर है और उन्होंने यहाँ पर मेन विकेट, इंतहाई वैल्यूबल विकेट जो कि अरसलान भट्ट की थी अपनी टीम के लिए प्रोवाइड की। तो नाउ 72 for 4 and सादात सॉकर टीम इज नाउ इन डीप ट्रबल। 72 मजबूत स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 144 मजीद रन चाहिए 69 गेंदों पर, जो कि काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है और एक आधी इनिंग्स दरकार है। आई रिपीट के एक आधी इनिंग्स दरकार है इस शॉर्ट फॉर्मेट को जीतने के लिए। और अब देखना ये होगा कि सादात सोकर के पास आने वाले प्लेयर्स में ऐसा खिलाड़ी है अरसलान भट्ट, अर्जुमन जान बख्श और इब्रार के आउट होने के बाद कि वो इस टारगेट को चेज करने में अपना कलीदी किरदार अदा करे और तेज बैटिंग करे। देखना ये पड़ेगा कि शेरियार को ज्वाइन करने वाले बैट्समैन खान यार के साथ मिलकर
کا پارٹنرشپ بلڈ کرتے ہیں یا نہیں. فی الحال سچویشن جو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہی الفاتح سپر کی ٹیم کے لیے. اور 4 مین بیٹسمین آؤٹ ہو کر واپس پویلین گئے ہیں جبکہ ان کو 216 رنز پیش کرنے ہیں. آج کے اس میچ میں 3 خوش نصیب اسپیکٹیٹروں نے کیچ پکڑا ہے. ٹیم کے 15,000 روپے مسٹر افتخار دارالمحبار ریسٹورنٹ کے اونر تاجہ میں مقیم کے پاکٹ سے ریسیو کریں گے پریزنٹیشن سرمنی میں. اس کے علاوہ ایسٹی پرفارمنس پلیئر کے لیے 5,000 روپے ان کی طرف سے مختص ہے کیونکہ آج پکے امیدوار ہے ذوالفقار اور دیگر انعامات بھی مسٹر افتخار کی جانب سے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ کمیٹیٹر نے ذکر کیا. بیسٹ کمیٹیٹر، بیسٹ امپائر، بیسٹ کیمرہ مین اور بیسٹ بولر، بیسٹ بولر اور بیسٹ بیٹسمین آف ٹورنامنٹ کے لیے بھی بہت بڑے بڑے اناؤنسمنٹ ہیں مسٹر افتخار کی جانب سے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اتوار والے دن اس گریٹ میچ کو جہاں پر خالد گنڈاپور صاحب جہاں پر آئیں گے اس میچ کے مہمان خصوصی ہوں گے. خالد گنڈاپور ایکسین پبلک ہیلتھ بٹرگرام اتوار والے دن کے میچ کے چیف گیسٹ ہوں گے. ان کو بٹرگرام شریف نظام طور پر خوشامدید کہتے ہیں جانب آرگنائزر کمیٹی کی سل. اور مسٹر افتخار کی جانب سے اس دفعہ شارٹ آف لائن ڈیلیوری پل کیا اس گیند کو پچھے قدم پر جا کر گیند سیدھی گئی ڈیپ ان وکٹ کی پوزیشن پر باڈی لائن سے باہر. امپائر کا اشارہ کہ 6 رن. 6 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور 76. 4 وکٹوں کے نقصان پر 134 مزید رن ابھی بھی چاہیے 67 گیندوں پر. اس اور یہاں روڈ پہ جتنے بھی بندے کھڑے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ پلیز آپ اپنی گاڑیاں نیچے پارک کریں اور روڈ پہ کھڑے ہو کر اس میچ سے لطف نہ اٹھائیں. پلیز آپ نیچے آئیں کیونکہ موٹر وے پولیس والے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ مین شاہراہ کو بند کرتے ہیں. تو جتنے بھی یہ تماشائی اوپر روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گاڑیاں وہاں پہ پارک ہوئی ہیں ان سے مدبانہ گزارش ہے پلیز موٹر وے پولیس والوں کے ساتھ کوپریٹ کیجیے اور اپنی گاڑیاں نیچے پارک کریں اور اس روڈ کو خالی کر کے نیچے گراؤنڈ میں آ جائیں. بہت بڑی جگہ ہے، گراؤنڈ کے چاروں طرف بالکل جگہ خالی ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر نزدیک سے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں. جوزل بیات آپ سے درخواست ہے کم سیدھا روڈ کے کسان ناس تھی آپ سے برائے میرے بانیو کے موٹر وے پولیس وال سر کوپریٹو کے روڈ خالی کئی اور دا گاڑی چکم چا پارک کر دی دوتم دا درخواست ہے گاڑی تاسو قتلات سے لاندے پارکنگ دے آلتا پارکنگ کے پارک ہے رازے دا میچ گرے میرے مہربانی. لنکس کا نبا اگر اختتام پذیر ہو تو 9 اوور کے اختتام پر 82 مجموعی اسکور 4 وکٹوں کے نقصان پر مزید 66 گیندوں پر 134 رن درکار ہیں اور مزید 10واں اوور جاری ہو. اس سے پہلے تفصیلات جاری رکھیں گے میرے ساتھی کمیٹیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر. 66 گیندے 133 رنز مزید چاہیے اس مقابلے میں جیت کے لیے. حارث سے ایک بار پھر اپ سائڈ یافتمی گیند اس گیند کو کھیلے ضرور کور کی جانب لیکن وہاں عمر ساوری جیسے فیلڈر ان کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی بیٹر کے لیے. اور یہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ान के वक्त के बाद सब सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बांगे हुए पदी पुलब मुंजुकु पुख्तुनख्वाजा टोल अजमका मानजिरा। सब सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। और अब की बार बड़ी उम्दा गेंद बाल बाल बचे है। ट्राई गेंद पे मौजूद शहरियार स्टंप के करीब से होती हुई गेंद शॉर्ट स्क्वायर लिख की जानी भाई। विकेट कीपर जब तक गेंद को उठाते थ्रू करते तो रन बनाने का मौका था। इस एक रन के मजीद इजाफे के साथ पैट ना का बाई का सिंगल अंपायर। अच्छा शुक्रिया। तो बाई के इस एक रन के इजाफे के साथ कुल मजमुआ 103। 11वें ओवर की आखिरी गेंद के साथ उमर साबरी उबैद के लिए हल्का सा बैट का ऊपरी किनारा, गेंद जाएगी बाहर 4 रन के लिए। क्योंकि फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर थे। क्या शानदार कमिटमेंट शो किया है यहाँ पे। हल्की सी ऊंचाई मिली इस गेंद को, हल्का सा बल्ले का ऊपरी किनारा छूने के बाद बिल्कुल विकेट कीपर के दास्तानों के करीब से गुजरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। इस 4 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 107, 107 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहाँ पे उमर अगर रन रेट को देखा जाए तो काफी बेहतरीन तरीके से इस रन रेट को मेंटेन रखे हुए है, लेकिन विकेटें काफी जल्द गवाई है। बटाग्राम स्टार कंबाइन स्टार के अगेंस्ट अल सादात सोकड़ की टीम ने जहां पे मैच का शुरुआत किया था, क्या धमाकेदार अंदाज से अर्जुमंद यार बख्त अर्जुब्राह्मण सेरा जिन्होंने शुरू के 2 ओवर में 28 रन बटोरे थे और उनके आउट होने के बाद मैच में वापस आ चुकी थी कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम। और अरसलान और उनके साथी ने किसी हद तक एक दूसरे का साथ जरूर निभाया था, लेकिन उन दोनों को भी ज्यादा देर तक खेलने का मौका नहीं दिया और उनको भी जल्द पवेलियन चलता करने पे मजबूर किया उमर साबरी और साबिर ने। लेकिन जब से क्रीज को संभाला है उबैद और शहरियार ने, तो किसी हद तक एक बार फिर मैच में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। 54 गेंदे 109 मजीद रन चाहिए इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। और बॉलिंग में तब्दीली की गई है। पहली बार उजैर को आजमाने का फैसला किया है। उजैर अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का 12वां ओवर लेके अपने बॉलिंग मार्क से बिल्कुल तैयार। पहला गेंद अंपायर के पास से गुजरे, शॉट 1 पीछे हटे, रूम बनाने की कोशिश की शहरियार ने, गेंद को खेले, 1 रन बन चुका है। और जब तक वहां पे खड़े फील्डर इस गेंद को होल्ड करते, दूसरे रन के लिए वापस पलटे थे स्ट्राइक एंड पे मौजूद उबैद, लेकिन उनको मना किया शहरियार ने कि ये रन खतरनाक हो सकता है। वही 1 रन पे इक्तिफा करना पड़ा दोनों खिलाड़ियों को। इस 1 रन के मजीद इजाफे से 108 मजीद 108 रनों की जरूरत है। 6 विकेट अभी भी हाथ में है और उबैद और शहरियार ही सलाहियत रखते हैं कि वो बड़े से बड़े मैच में बड़े बड़े टीमों के खिलाफ मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन विकेट पे स्टे करना होगा। उजैर की स्लो वन चेंज अप पे से रिसीव किया है। अब की बार उबैद को बड़ी अच्छी यहाँ पे जो सोच बूझ थी उजैर की उसमें कामयाब रहे, लेकिन थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने विकेट कीपर उमर चंदा से। और उमर आज एक नाम के ज्यादा बंदे ग्राउंड में मौजूद है, ग्राउंड के अंदर भी और बाहर भी। उमर चंदा विकेट कीपर, उमर साबरी बॉलर और आप मेरे को कमेंटेटर उमर। और इनके अलावा दीगर भी ऐसे नाम है जो कि एक ही नाम के बंदे हैं और यहाँ ग्राउंड के अंदर मौजूद है। उजैर एक बार फिर फायर के पास से शॉट 1 कदमों का इस्तेमाल, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, लॉन्ग ऑन की जानिब इस गेंद को खेले। वहां पे फील्डर को तैनात किया है, महबूब उस्मानी थे शायद या जुल्किफल है, वहां पे फील्डिंग करवा रहे हैं। उन्होंने गेंद को रोका लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए। 1 रन के मजीद इजाफे से 110 कुल मजमुआ इस बड़े टारगेट को चेस करने का, पीछा करने के लिए अल सादात सोकड़ का कुल स्कोर। और यहां से लाठी चार्ज करना होगा जुल्किफल की तरह, हर दूसरे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना होगा, वरना हर डाट गेंद आपके लिए दर्द सर बनेगी। लेकिन उबैद कोशिश कर रहे हैं लाठी चार्ज करने का और अब तक उबैद कामयाब भी हुए हैं। इनफिरादी तौर पे उबैद अब तक 8 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं और उनका साथ निभाने वाले शहरियार 18 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं।
कुल मजमुआ 116, मजीद 100 रन की दरकार 50 गेंदों में। उसेर एक बार फिर डाउन द नेक्स्ट स्टंप, क्या बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर अंदर, गेंद जाएगी बाहर। अनदर मैक्सिमम कैलोरीज, उवैद के बल्ले से अब की बार रन चुराने का फैसला। ग्यारह इशारिया 5 के बाद 120 कुल मजमुआ था और आखिरी गेंद पे स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब रहे। 12 के बाद कुल मजमुआ 121, 1-1 फदला सा 4। और यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त क्रीज पे है उबैद और उनसे यही तवक्को की जा रही है उनके स्किपर करीम सैद और उनकी पूरी फैमिली का और उनका साथ निभाने वाले शहरयार। दोनों के दरमियान अब तक की इस पार्टनरशिप का हम जरूर जानना चाहेंगे अपने स्कोरर रिजवान भाई से कि अब तक इन दो खिलाड़ियों के दरमियान 5वीं विकेट के लिए कितने रनों की साझेदारी हो चुकी है, कितना पार्टनरशिप ये बिल्ड कर चुके हैं शहरयार और उबैद, क्योंकि यहाँ पे उनकी टीम को जरूरत है एक अच्छे पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप के साथ साथ हर दूसरे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की। कुल मजमुआ 121। एक बार फिर बॉलिंग की जिम्मेदारी हारिस ऑल द वे फ्रॉम चरसद्दा। पहला गेंद स्लो वन, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब। लॉन्ग ऑफ की जानिब, डीप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद जिन्होंने गेंद को रोका। चहल खत्मी के अंदाज में स्ट्राइक को रोटेट किया है दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 122। 1-2-2 4 विकेटों के नुकसान पर 216 रन्स का टारगेट चेस करने के लिए शेरजान में मसरूफ है इस वक्त। सॉरी, हारिस की अगली गेंद एक बार फिर स्लो वन, चेंज अप पेस से अपने गेंदों को बचाने की कोशिश में, लेकिन यहाँ पे मैच फील्डिंग का मुजाहिरा और उसी का फायदा उठाते हुए दोनों बैटर। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में दौड़ लगा के जहां 1 रन भी नहीं बनना चाहिए था 2 रन बटोर चुके हैं। और उमर शहरयार जानते हैं कि उनकी टीम के लिए 1-1 रन और 2-2 रन बटोरना इंतहाई अहमियत रखती है। इस बड़े टारगेट को चेस करने का पीछा करते हुए यकीनन बड़ी अच्छी कोशिश। हारिस की 2 गेंदों में अब तक 3 रन बन चुके हैं। हारिस एक बार फिर डाउन द नेक्स्ट स्टंप, खेलने गए थे इस गेंद को। अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि आया ये गेंद पैड या बैट से टकराने के बाद। तो अंपायर ने इशारा दे दिया है कि गेंद बैट से टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पे गई। वहां फील्डर मौजूद थे बख्तियार, जब तक वो गेंद को फील्ड करते वापस करते स्ट्राइक को एक बार फिर रोटेट किया है। अब तक उमर 3 गेंदों में बाउंड्री को जरूर बचाया है हारिस ने, लेकिन देखना है कि अगले 3 गेंदों में उबैद के सामने वो किस तरह गेंदबाजी करते हैं। उबैद अब तक 11 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं। हारिस एक बार फिर रनपुट पे गए इस गेंद को खेलने के लिए, टाइम नहीं कर पाए, हल्का सा इस गेंद को पुश किया आखिरी एंड पे। पीछे फील्डर थे डीप मिड विकेट की पोजीशन पर उमर साबरी, गेंद को रोकने में कामयाब, रन्स बनाने से नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। इस 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 126। इंतहाई शानदार क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है आज के इस बड़े मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे जरूरत थी बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड फराहम करने का, जिसकी बड़ी अच्छी कोशिश की अर्जुमन यार बख्त ने, लेकिन ज्यादा देर तक वो क्रीज पे न टिक सके और वही जल्दबाजी करते हुए अपना विकेट गवा बैठे। और उनके आउट होने के बाद 3 लगातार विकेटें गवाई। एक बार फिर डाउन द लेग स्टंप, पीछे हट के इस गेंद को खेलने की कोशिश की शहरयार ने। और उमर अपने शॉट सिलेक्शन पे इंतहाई नाखुश, और वो समझते हैं हर डॉट गेंद की अहमियत को, क्योंकि हर डॉट गेंद उनके परेशानी में इजाफा करती है और उनको इस टारगेट को मजीद चेस करने को मजीद मुश्किल बनाने में, इसी वजह से उस गेंद पे और इस शॉट सिलेक्शन पे इंतहाई नाखुश हारिस। एक बार फिर शहरयार के लिए कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले और वहां पे गेंद को रोकने में कामयाब। मिड ऑफ की पोजीशन पर खड़े फील्डर और सिर ओवर के इख्तिताम का इशारा। 13 के बाद 216 का पीछा करती हुई कुल मजमुआ 126। 42 गेंदे, 90 मजीद रन चाहिए
اس مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ اگلے اوور کے لیے اس اوور کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا. جو ساتھی نماز کے لیے تیار ہے وہ یہاں پہ باجماعت نماز ہوگی تو آپ تیار رہے, اور جو ساتھی نماز کے لیے تیار نہیں ہے وہ نماز کی تیاری پکڑے اور اپنے آپ کو تیار رکھے. اس اوور کے بعد یہاں پہ نماز کا وقفہ ہوگا. 42 گیندے 90 مزید رنز درکار اس مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے. گرین شگئی وادی ٹیکری کوزہ بانڈا کا خوبصورت گراؤنڈ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بالکل بغل میں واقع یہ خوبصورت گراؤنڈ, اور اس خوبصورت گراؤنڈ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کمبائن سٹار بٹگرام اور السادات سوکٹ کی ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اور اس بار گیند کو نکالنے میں کامیاب, لیکن پیچھے فیلڈر ہے. ڈیپ پوائنٹ کی پوزیشن پہ کھڑے فیلڈر نے اس گیند کو روکا, اور یہاں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مین سپانسر افتخار خان کے انتہائی قریبی دوست جو کہ ان کے بہاف پہ ہر روز یہاں آتے ہیں اور کام باکس میں موجود ہوتے ہیں. وہاب خان بابا ڈاؤن دا گراؤنڈ اس گیند کو کھیلنے گئے تھے, لیکن گیند کی لائن کو کمپلیٹلی میس کیا. گیند پیڈ سے ٹکرانے کے بعد قریب رہی. لیگ بائی کی صورت میں رن چرانے میں کامیاب ہوئے شہریار. اس ایک رن کے مزید اضافے سے کل مجموعہ 128, اور جس طرح پرسوں ہم نے ذکر کیا تھا جماعت اسلامی پاکستان اور الخدمت پاکستان کی جانب سے انہوں نے جو پروگرام لایا ہے بنو قابل کے نام سے, تو پاکستان میں یوتھ کا سب سے بڑا پری آئی ٹی روزگار پروگرام جس کا وہ ہر روز یہاں کیمپ لگاتے ہیں, اور آج بھی بنو قابل کے ہمارے ساتھی یہاں گراؤنڈ کے اندر موجود ہے اور یہاں سے آگاہی مہم میں مصروف ہے. 25 سپتمبر لاسٹ ڈیٹ ہوگا. جو ساتھی اس میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میسج ہے کہ وہ 25 سپتمبر سے پہلے اپنی انٹری کو کنفرم کروائے, اور 3 اکتوبر کو ٹاکرا اسٹیڈیم مانسیرا میں اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا, اور ٹیسٹ میں جو ساتھی سلیکٹ ہوں گے اور بنو قابل پروگرام کا حصہ بنیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک بڑا موقع ہے. اور ان کے علاوہ ایک اور میسج, بٹاگرام میں کرکٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کرکٹ کے بڑے بڑے ستارے بٹاگرام نے کرکٹ کو دیے ہیں, لیکن عمر ابھی ایک پیغام موصول ہوا ہے کہ آزاد کشمیر باغ میں بٹاگرام ہی سے تعلق رکھنے والے والی بال کی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کی ہے. تو یہ ایک بڑا اناؤنسمنٹ ہے والی بال کے چاہنے والوں کے لیے, اور بٹاگرام کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ آزاد کشمیر میں جا کے وہاں بٹاگرام کی ٹیم نے کوالیفائی کی ہے, اور منگل والے دن وہاں پہ فائنل ہوگا آزاد کشمیر میں باغ کے مقام پہ. تو ہمیں بھی میسج ملا ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں جا کے اس میچ کو انجوائے کرے. اور اس بار گیند کو کھیلے ہے, لیکن پیچھے فیلڈر ہے, اس گیند کو روک پائیں گے یا نہیں, اور گیند کو روکنے میں کامیاب ضرور. یہاں پہ بیچ میں وکٹ گری ہے میرے خیال سے, وہ بیٹ آؤٹ ہو کے واپس جا چکے ہیں رن آؤٹ کی صورت میں, اور یہ بڑی کامیابی تھی میچ میں ایک بار پھر واپس آنے کے لیے بٹاگرام سٹار کی ٹیم کے لیے. اور کریز کو جوائن کر چکے ہیں مکرم شاہ اسٹرائک اینڈ بیٹر. وقفہ برائے نماز کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دلتبا جمی منز کی گی گراؤنڈ کے دن کمل گری سے تیار دی اغا باجمات منزو کئی حکم چی ندی تیار اغال تک خاٹا ولا بئی گی او دس بو کئی او منز بو کئی بیا منگ ساس خدمت کی حاضری.
away.